Okay, let's start with the new topic that is about subtotal. Okay, subtotal में we shall try to find actually. If I just ask you, let me first explain the data. It's about there are different regions east, north, south, west. ठीक है, there are different sales person and there are different products. मेरे पास लैपटॉप है, मेरे पास मोबाइल है, टैबलेट है. For these products, there are units sold given, unit price given, right, and total sales amount भी given है. Okay. So if I ask you ki find the total sales, then you will just simply type equal to sum and select the numbers. It will give you the total sales. But if I ask you ki what is the total sales for laptop only, or find the total sales for each of the products. तो laptop का कितना है, mobile का कितना है, tablet का कितना है, then that is called subtotal, right? So I have taken first let me uh, sort the data by date. Now my data is ready. Okay, so this sum will not work. Now my data is ready and I'll first see the first question, find the subtotal for each product. So मुझे लैपटॉप का चाहिए, लैपटॉप यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है एंड यहाँ पे है. मुझे लैपटॉप का सम ये प्लस ये नंबर ऐड करना है. फिर सिमिलरली मोबाइल का मोबाइल में और टैबलेट का टैबलेट में ऐड करना है. तो टू डू दिस आई नीड टू डू दी सब टोटल. ये दो तरीके से करते हैं. फर्स्ट तो वी शैल बी डूइंग थ्रू दी फंक्शन दैट इज गिवन ओवर हियर, अदरवाइज वी शैल यूज द फंक्शन बाय टाइपिंग इक्वल टू सब टोटल. ओके, लेट स्टार्ट विद द फर्स्ट वन. उसमें क्या करेंगे, if the first question is find subtotal for each product, then I will go to, because it is about the product wise subtotal निकालना है. So I will go to product column में मैं अपना कर्सर कहीं पे भी रखूंगा and I'll go to data and I will sort it by A to Z or Z to A, doesn't matter. I'll click A to Z. The main thing is it should be sorted. अब ये देखो लैपटॉप सारा एक जगह गया, सॉर्ट हो गया, मोबाइल सारा एक जगह गया, सॉर्ट हो गया, टैबलेट सारा एक जगह गया, सॉर्ट हो गया, राइट. एक सीक्वेंस बना लिया मैंने. नाउ सब टोटल फाइंड करने के लिए यू गो टू डेटा टैब एंड गो टू आउटलाइन और सब टोटल. ठीक है, आई क्लिक सब टोटल. इट विल आस्क मी थ्री थिंग्स. वन, at each change in, you want to do the subtotal at each change in what? Because my first question is कि find subtotal for each product, तो मैं product ही select करूँगा. Right now my category is product. अब use function, I can use sum also, I can use average also, but right now question is saying find subtotal. Otherwise अगर आपको for each laptop, for each mobile, for each tablet, for each product अगर आपको average sales find करना है तो आप average भी select कर सकते हो. But I will take sum here. For each change in product, use function sum. And sum of what? So sum of course sales होगा, sales is already selected and I'll click OK. Then you will see what happens. You see the data is segregated like this. For each laptop the data is there and laptop का subtotal यहाँ पे है. If you put your cursor here, you see the formula subtotal 9 G2 to G5. ठीक है, इसने खुद ही शॉर्ट मैंने कर दिया. तो इसने खुद ही लैपटॉप का यहाँ सब फंक्शन लगा के टोटल निकाल दिया, फिर मोबाइल का यहाँ पे निकाल दिया और टैबलेट का यहाँ पे निकाल दिया, और इस तीनों को ऐड करके ग्रैंड टोटल मेरा इतना हो गया. एंड व्हाट इज दिस कैटेगराइजेशन? इफ यू क्लिक वन, यू विल बी सीइंग द ग्रैंड टोटल, मतलब सम जो एग्जैक्ट सम है टोटल सेल्स का वो यहाँ पे आ गया. इफ आई क्लिक टू, then it will show the total for laptop, total for mobile and total for tablet and then grand total. If I click 3, then ये सारा टूट जाएगा और ये लैपटॉप का भी क्लियरेंस दिखाएगा, मोबाइल का भी क्लियर दिखाएगा, टैबलेट का भी पूरा दिखाएगा. Similarly, if I have to remove this total grouping ungrouping, then I will go to data again outline, again subtotal, और subtotal में I will just click remove all और मेरा डेटा बैक टू नॉर्मल हो जाएगा. ठीक है, अब सेम चीज़ को मैं दूसरे एग्जाम्पल से करता हूँ. फाइंड सब टोटल फॉर ईच रीजन. तो मेरा कैटेगरी क्या आएगा यहाँ पे? रीजन. आई विल गो टू रीजन. ठीक है, आई विल पुट माई कर्सर एनीवेयर ऑन द रीजन कॉलम. देन आई विल गो टू डेटा एंड सॉर्ट इट ए टू जेड और जेड टू ए. क्लिक ए टू जेड. नाउ यू सी सारा ईस्ट एक साथ आ गया, सारा नॉर्थ एक साथ आ गया, सारा साउथ एंड साउथ वेस्ट सारा एक साथ आ गया. इट इज सॉर्टेड. नाउ आई कैन गो टू डेटा टैब, आउटलाइन, सब टोटल. नाउ दिस टाइम एट ईच चेंज इन क्या होगा? एट ईच चेंज इन रीजन होगा, क्योंकि मुझे रीजन वाइज निकालना है. फंक्शन सम ही यूज करूंगा और किसका सब टोटल करना है? सेल्स का करना है. क्लिक ओके. नाउ ईस्ट का टोटल यहाँ पे आ गया, नॉर्थ का टोटल यहाँ पे आ गया, साउथ का टोटल यहाँ पे आ गया, वेस्ट का टोटल यहाँ पे आ गया, और इन सब का टोटल ग्रैंड टोटल यहाँ पे आ गया. इफ यू क्लिक वन, ग्रैंड टोटल इज विजिबल. इफ यू क्लिक टू,
all the reasons total is there and then grand total is there and you click 3, everything is visible. अब मुझे सिर्फ मान लो नॉर्थ का देखना है तो नॉर्थ के सामने जो प्लस बटन है वो क्लिक करूंगा तो नॉर्थ का डिटेल आ जाएगा। मुझे सिर्फ वेस्ट का देखना है तो वेस्ट के सामने जो प्लस बटन है वो आ जाएगा। अगर सबका देखना है तो 3 क्लिक कर दो और सारा टूट जाएगा। ठीक है ना, आई विल गेट माय डेटा बैक टू नॉर्मल, सो आई विल गो टू डेटा, आउटलाइन, सब टोटल, आई विल क्लिक रिमूव ऑल, डेटा इज बैक टू नॉर्मल। ये तो पहला तरीका था। सो आई विल लेट द क्वेश्चन बी हियर। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, आई यूज द फंक्शन। फंक्शन में क्या करते हैं, यूजिंग द फिल्टर, सब टोटल विथ फिल्टर वी शैल डू। पहला वाला तो हमने कर लिया है, दैट इज फर्स्ट वन, सॉर्ट डेटा एंड सब टोटल। दूसरा है सब टोटल विथ फिल्टर। व्हाट आई विल डू, आई विल put my cursor here anywhere in the data and I'll go to data and click filter। मैंने फिल्टर लगा दिया, अब सब में ये फिल्टर आ गया। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं लास्ट में गिव इट सम कलर, लास्ट में मैं इसका सम निकाल या सब टोटल निकाल लेता हूँ, इक्वल टू सब टोटल। अब मैं फंक्शन यूज कर रहा हूँ, इक्वल टू सब टोटल। द मोमेंट यू टेक द फंक्शन सब टोटल, देखो मैं टैब दबा के फंक्शन सेलेक्ट करता हूँ, इट विल गिव यू सम नंबर्स। अगर एवरेज निकालना है तो यू टाइप 1, काउंट निकालना है तो यू टाइप 2, काउंटे करना है तो 3, मैक्स करना है तो 4। मुझे क्या करना है, सम करना है। तो सम का नंबर कहाँ पे है, 9 पे। तो आइदर यू डबल क्लिक दिस सम और जस्ट प्रेस 9, इट इज टेकन, टेक कॉमा, देन इट इज आस्किंग फॉर द रेफरेंस 1, रेफरेंस 2। तो मैं रेफरेंस 1 2 में कुछ नहीं, ये सारा जो ऊपर का नंबर है सम सारा ले लूंगा और एंटर दबा दूंगा। इससे क्या हुआ, ये मेरा सब टोटल तो निकला बट ये सबका टोटल कर दिया इसने, ये कोई कैटेगरी वाइज नहीं है। बट अब मैं इसको कैटेगरी वाइज चेक कर सकता हूँ, कैसे। अब मुझे मान लो लैपटॉप का सिर्फ देखना है, देन गो टू प्रोडक्ट फिल्टर और यहाँ से सबको अनटिक कर दूंगा और सिर्फ लैपटॉप सेलेक्ट कर लूंगा और ओके कर दूंगा। ठीक है, अब ये जो सम दिख रहा है ना, ये सिर्फ इन तीनों चारों सेल्स का सम है। इसमें फ़ायदा ये है कि आप लैपटॉप और मोबाइल का एक साथ देख सकते हो। अब मैं इस पे फिर से जाऊँगा, लैपटॉप के साथ मोबाइल भी सिलेक्ट कर दूँगा। अब ये सम जो है लैपटॉप और मोबाइल दोनों का डेटा आ गया। ठीक है, लैपटॉप मोबाइल दोनों है इसमें और इन दोनों का सेल्स अमाउंट यहाँ पे और दोनों का सम यहाँ पे आ गया। सिमिलरली आवर नेक्स्ट क्वेश्चन वाज ऑन द रीजन। अब मान लो मुझे ईस्ट और वेस्ट का देखना है, आई विल गो टू रीजन, सेलेक्ट ऑल। तो ये सारा हट गया, ईस्ट और वेस्ट दोनों को सेलेक्ट कर दिया, ओके कर दिया। अब ये ईस्ट और वेस्ट दोनों का सेल्स है। ये इस फ़िल्टर वाले तरीके का फ़ायदा है। आप एक नहीं मल्टीपल कैटेगरीज़ का या सारे कैटेगरीज़ का नहीं देखना है, सिर्फ़ ईस्ट और वेस्ट का देखना है, उसको टिक कर दो और ये जो सब टोटल ही ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। इसको सम से नहीं कर सकते थे क्या? नहीं, सम से करोगे तो फ़िल्टर के हिसाब से ये नंबर चेंज नहीं होगा। बट अगर आप सब टोटल फ़ॉर्मूला यूज़ करके करोगे तो फ़िल्टर जैसे-जैसे चेंज करोगे, ये नंबर भी चेंज होता जाएगा। ये यूज़ है सब टोटल का। ठीक है?